will calculate you the theta. Do you know this about the question? Okay. Okay, please calculate this one now. So I think we have a question like this. The first question. Yeah. Come to the third वाला part. Third को illustration number third. देखिए वैसे ही बनेगा क्या मैं बताऊं? तो पहले हम ये वाला करेंगे. No, I'm just solving this now. They have given you the alpha now. That's why we just have to put this. Alpha they have given in a question. Got it now? Please do. Genius people. This is 6, not the 1. This is 12. Misprint है बड़ा गंदा. 9 minus 12. Sorry? Okay. Yes, people. No, it's a VMC na, VMC. Third one na. No, I think no, I have already shared you the details na. Come to the page number 3. VMC का मटेरियल निकाले जी. या शायद ये वाला नहीं किया था इसलिए मैंने करवाया एक बार. जल्दी से कर लेते हैं. ओ माय गॉड. ठीक है. तो मैं पिछली क्लास में सो रहा था क्या कि पढ़ा रहा था मैं? मैं पढ़ा रहा था मेरे को याद. नो. ओके. मैं हाँ. नो 16 नहीं 16 नहीं कराया था ना मैंने आपको. ओके. कैसे किया प्लीज एक्सप्लेन दैट. Okay, but you know torque has the two equation, I into alpha and F into R, right? Okay, Fr sin theta. So this is the diagram. Let's say this is the diagram.
as this is the theta, and this is the weight mg. So what happened, the mg is, this is mg, so we are calculating the torque around this point O. We are calculating the torque around point O. If the total length should be going to be the L, this length should be going to be L by 2, and this distance perpendicular distance L by 2. So this is what we call to that L by 2 sine theta. This is the force. So torque on this side will be equal to mg L by 2 sine theta will be equal to I into alpha. I will be equal to ml square by 3. This is the alpha. So ml square by 3. So this is the simple value you have to remember. So alpha, please calculate the alpha. Got it, Srishti Genius? We have to select a particular point where we have to apply this equation, then we have to write the formula, then we have to go step by step. Done? Yes, done now. Okay, please, can you please do this question? I'm just giving this. नहीं 15th एक बार करते हैं ना. प्लीज ट्राई 15th once more without. Yeah, I know we have done, but I just want to check whether how many time do you want for solving this type of the question. Okay, mass of block A M1, this is M2, okay. How do we calculate the third equation? So this is the 2 what we called. This is the 2 what we call to that we have a 2 at what we call tension. This is the tension T1 and this is the tension T2, and when it start rolling on this pulley, so net torque, how do we calculate a net torque? Net torque will be equal to what? I into alpha, right? और अब जो कर रहे थे आप, और आपको पता है what we have done in this case, we have assumed the two different length, right? टेंशन दोनों का ऐसे सेम. प्लीज डू दैट. T2 what? T2R minus T1R I alpha mr square into alpha.
Got it? Please come to the yes. So 17. 17th में कर, अच्छा आप कर लो, आप प्लीज करो. ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 17th. आ जाइए जल्दी से क्लास. हाँ, yeah, so let's do this general rigid body motion, then we come to the question number 17th. So let's start this topic. So in the case for the kinetic energy class, kinetic energy, the total kinetic energy will be equal to kinetic energy due to translational motion plus kinetic energy due to rotation. ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी इनका. देखिए, सो अब ये क्या है कि फॉर द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर सी एम, because when we have so many systems, so many particles in a given system, we have to consider one particles which is center of mass. I hope it's all right. So suppose this is center of mass moving with the speed vcm. So we just have to use this simple formula. What we call k will be equal to half vcm. What is the formula for the kinetic energy of the body, rolling body? Half I omega square. What is I? I is for the half ICM omega square. So this is the what we call to this. Okay, and ICM is what? What is ICM? ICM is moment of inertia. Moment of inertia around what? Around, or we can tell about COM, center of mass. तो ये आप कर सकते हैं, आप निकाल दिया. ओमेगा क्या होगा क्लास? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, ये है. तो हम क्या करेंगे, अब सुनते हैं करके. सबसे पहले हम लिखेंगे के हाफ एम वी स्क्वायर सी एम हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज द टोटल, के इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी of the body. Yes people, yes Srishti. चलिए, so we just have to focus on two quantity. One is rotation वाला, ये तो this is for the translational motion. And this is for the next one, this is for the rotational motion, right? Okay,
अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. कैन आई रिमूव दिस? ओके. Instantaneous velocity of a point तो कैसे करेंगे सर? लेट डिस्कस दैट. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट, हाउ डू वी डू दैट? सो जैसे क्या है, we have to take two things. Suppose you want to calculate the instantaneous velocity of any point. You just have to remember this formula. V will be equal to net V. First thing we have to write velocity of center of mass. Then we have to write the tangential speed. And what is this Vt? So Vt we know na, omega into R. And the Vt is directed along what? Always directed along the tangent. Yeah, along the tangent to what? Tangent to the circular trajectory about center of mass. And this is Vt, this is Vcm, this is V. So Vt will be equal to R omega. Vt is this. So what we are going to discuss in this, if its body is doing some what we call circular motion, so we have to take a 2 point. कोई सा point, let's consider this point. So what is the what we call Vt at this point, and what is the speed at center of mass? We both have to add. We get a instantaneous velocity at point number A. कुछ समझ में आया आपको? सपोज एक क्वेश्चंस करते हैं जीनियस पीपल, वेरी सिंपल क्वेश्चंस करेंगे अभी. सपोज कि दिस इज अ बॉल, सपोज एंड दिस पॉइंट ए मूव विद द स्पीड ऑफ Vcm. So we have to calculate the instantaneous velocity at A. So we will write the instantaneous velocity of center of mass plus Vt, and the Vt will be going to be this distance R. This is the tangential what we call speed. So Vcm plus R into omega. So because the whole system is moving with the omega, so this will be equal to Vcm plus what we call R omega. अच्छा, लिसन वेरी केयरफुली. आई थिंक इन द प्रीवियस क्लासेस मैंने बताया था कि अगर आपको स्कूटी चलाने नहीं आता है, दिस डजंट मीन आपसे क्वेश्चंस नहीं होगा. आपको कुछ चलाने आया ना आए, मेरे को कुछ चलाने आया ना आए, हमें देखना क्या है. मान लो आप आंखें बंद करके आप स्कूटी चला रहे हैं और आपके भी कीचड़ में ले जाके आपने स्कूटी को फंसा दिया. क्यों? चलाने नहीं आता है. तो जब आपने फंसा दिया, अब आपको निकालना है, तो आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं. दिस व्हील इज व्हाट वी कॉल रोटेटिंग, बट यू आर नॉट शिफ्टिंग योर पोजीशन. तो आप समझ लेना कि आप गड्ढे में गिर गए, मतलब आपके जो व्हील है वो चक्का जो फंस गया, राइट. तो उस केस में क्या होगा? दिस इज नॉट अ प्योर रोलिंग, स्लाइडिंग मोशन, नॉट प्योर रोलिंग. ऐसा तो इसको स्लाइडिंग हो गया ये. दिस इज नॉट प्योर रोलिंग, नॉट प्योर रोलिंग. तो मेरे क्लास नॉट प्योर रोलिंग. तो मैं क्या एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन द प्योर रोलिंग क्या होता है. इन द प्योर रोलिंग क्या होता है, Vcm जो होगा और जो ओमेगा आर जो होगा, बोथ विल बी इक्वल. बोथ Vcm सेंटर ऑफ मास of body
will be equal to omega into r. So this is a very good what we call condition. So we are assuming okay, our body is doing pure rolling motion, so we can write 2 VCM, or we can also write like 2 omega into r. So this is the very good thing that we have learned. I hope it's all right, it makes some sense. Yes people. अच्छा, एक अच्छी चीज़ और सिखाता हूँ, घर ले जाइए और आप लोगों को जो बोला गया था बिल्कुल लेकर आए कि ये क्लास में, राइट। कुछ लोग तो बिल्कुल लेकर नहीं आते हैं साथ में। सृष्टि शायद आप लेकर आते हैं। गुड। दिस इज VCM और यहाँ पे कितना होगा जीनियस पीपल? इसका डायरेक्शन इधर होगा। एग्री करते हैं आप? तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हेलो पीपल, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, point of contact, or if the body is doing pure motion, pure what we call rolling motion, then VCM will be equal to omega into r, right? Yeah. This is rolling motion. Okay, आगे आते हैं। This is the rolling motion. We have this basic equation. Right? हो गया? ओके। नहीं, अभी कुछ एक चीज़ और बताना है, डिस्कस कर लें। ओके। व्हाट हैपन इफ माय बॉडी डू नॉट स्लिप? रोलिंग। सृष्टि अभी तक आपने क्वेश्चन सेंड नहीं किया है सृष्टि, वो सब याददाश्त थोड़ा सा सोचो आप। सृष्टि जो है थोड़ी बिजी, वेरी बिजी पर्सन, राइट, वेरी बिजी। अगर सो ओके नो डाउट, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट ना, इट्स अ टीचर फॉल्ट। तो मैम टीचर नो 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 नो, यू डू नॉट हैव टू गिव अ टेस्ट। अब बोलिए मैडम आप टेस्ट दे दीजिए मेरे बदले, मेरे को तो मेल मिला ही नहीं, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो 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 गो कोई कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप मेरी बात सुनिए, आप बोलिए कि मैं पेपर नहीं दूंगी, आई डू नॉट गेट अ मेल एट ऑल, so why should I give a what we call any unit test? So if I do not get, I need some test. No, I will give after some days, ma'am. So really sorry for this. खत्म करिए। एक मेल लिखो, उसी पर एक वहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन आएगा, फॉरवर्ड करो, एक प्रिंसिपल को भी लगा दो, कॉपी पेस्ट करके ख़त्म करो। चलिए, नो प्लीज डूड प्लीज, क्यों नहीं कर सकते आप तो फियरलेस हैं। एंगल विल बी इक्वल टू, चलो अभी बात करेंगे, है ना, 9:30 के बाद। अभी कुछ पढ़ाने वाला हूँ। एंगल विल बी इक्वल टू, क्या करोगे जल्दी बताओ सर? एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट? थीटा विल बी इक्वल टू आर्क बाई व्हाट? आर्क बाई रेडियस। ये फॉर्मूला होता है, फिर से बोल रहा हूँ मैं क्लास। थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? आर्क बाई, यस, व्हाट इज आर्क? एक्स। व्हाट इज एक्स? तो एक्स डिस्टेंस है, यही एक्स आपको डिस्टेंस ही लेना है, और या एल ले सकते हैं। ओके, तो एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? आर इंटू थीटा।
अब ध्यान से सुनना है कि अगर ये प्योर रोलिंग नहीं करता तो ये वाला इक्वेशन वैलिड नहीं था। अब क्या करने वाले हैं, नाउ डिफ्रेंशिएट दिस, नाउ डिफ्रेंशिएट दिस। तो कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट करके, dx अपॉन dt d अपॉन dt r theta v will be equal to r d theta by dt. What we get, v will be equal to r omega, right? This is the first equation. Just do one more thing na. V will be equal to r into omega dv by dt d upon dt r omega r d omega upon dt dv by dt. Acceleration will be equal to r into alpha. Got it? So x will be equal to r into theta हो गया, v will be equal to r into omega हो गया, a will be equal to r into alpha हो गया. The three equation we just know. This is the condition for the what? Pure rolling. हो गया भाई. अब 17 करना, 17 you want to do or should I do 17 for you? प्लीज कीजिए, ऑल द बेस्ट, जल्दी कीजिए. Yes, yes, yes. हो गया क्या? करो एक बार. हेलो मैम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग मैम. हाँ जी मैम, ठीक है मैम. मैं बताता हूँ मैम. ठीक है मैम, ओके मैम, ओके मैम. हाँ ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक. हो गया. तो अब ये देखिए सर, ये बॉडी ऐसे जा रहा है, यहाँ देखिए, ये जो वैल्यू आपको दे रही है यहाँ पे, ये थीटा है. कितना है ये? यस, ये आपने कर लिया ना सृष्टि? गुड 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 गुड. एक अच्छी चीज थी, या प्रेजेंट कीजिए. कैसे कैसे इक्वेशन क्या सृष्टि, थोड़ा डिस्कस करिए, करते रहिए आप. पहले तो हम इसको ब्रेक कर दिया हम लोगों ने.
फिर एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स, राइट। तो अब क्या करोगे, देखो सर, और पीछे क्या लगेगा आपको, ये आपने लगाया ना फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। नॉर्मल फोर्स एक इधर ले लो, फ्रिक्शनल फोर्स ले लो, एम जी कॉस थीटा लो, एम जी साइन थीटा लो, ये वाला सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी से। प्लीज सॉल्व। ओके, सृष्टि ने कुछ सेंड किया है सर, आपका नाम सृष्टि है ना? मैंने एक सेकंड, v इक्वल टू आर कर दिया आपने, ए सी इक्वल टू आर कर दिया, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल, ओ माई गॉड, वेरी गुड। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, दिस फॉर्मूला जो आपने निकाला है ना, ए सी विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा। एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, देखो बता पाते हो आप, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर आपने आंसर इसका दे दिया तो पिज़्ज़ा भी ऑर्डर हो जाएगा। रिंग, सॉलिड, सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर है, तो टेल मी द एक्सेलरेशन। नहीं, विच हैव द मोर एक्सेलरेशन, जल्दी करना है। हाँ, आप चीटिंग कर सकते हो, ओपन चीटिंग है, ओपन। देखिए, तो कोई बात नहीं, रिंग का क्या होगा, देखिए अब डरना नहीं है, पहले तो ये बड़ा बुरा बात है, डरना नहीं है। मैंने श्रेष्ठ को डरना सिखाया, थोड़ी है ना, थोड़ा सा स्टेप लेंगे। रिंग का कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है क्या? सॉलिड का कितना होता है, 3/2, 5, 3/2। तो मैंने सृष्टि को डरना सिखाया नहीं, सृष्टि क्यों डरती है भाई? एक इसका कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर सिलेंडर का। ओके, हाफ उसी को बोल देना, राइट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे भाई साहब, काटोगे इसको? थोड़ा सा दिमाग सोचना है ना। और आप अब इसकी जिसकी फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, आप कम कैलकुलेट करो, आगे का काम आप करो। हम्म नहीं नहीं, विच बॉडी हैज द मोर एक्सेलरेशन। कीजिए जल्दी से, 1 सेकंड का टाइम लूंगा मैं। कि यस यस, हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अभी सर एक जो है, एक जगह लीड आई हुई है, ठीक है, तो मतलब कि अच्छा है, आप वहाँ पे 1100 भी मांग सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। और मेट्रो के ठीक सामने है, 12 के। और यहाँ पे है ना, वो प्रोफेसर हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में है। और उनके फादर जो है ना, ग्रुप कैप्टन है वो, इंडियन आर्मी, इंडियन है ना, एयरफोर्स में। तो तो मैं आपको नंबर फॉरवर्ड करता हूँ, शायद 4 क्लासेस को मांगेंगे, जिसको मैंने लीड लिया है ना। हाँ, तो मैं वहाँ 2 तो कर रहा हूँ, तो उन्होंने इसलिए आप ही को थोड़ा सा बता दिया मैंने। तो आपको सेट कर दूँ सर? नहीं नहीं नहीं, आप बात कर लीजिए, मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा आप।
नहीं नहीं, अभी कर लीजिएगा, कल से आप स्टार्ट कर सकते हैं ना, इसीलिए बोला। ठीक है सर। आप 1100 रख लीजिएगा या 1000 रख लीजिएगा मैं। ठीक है सर, मैं बाद में बात करता हूँ, आपको नंबर सेंड करता हूँ। नहीं 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 सर, मैं ले रहा हूँ ना, मैं उतना ही ले रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। ठीक। चलिए सर, मैं अभी क्लास में हूँ सर। हाँ हाँ, हो गया सृष्टि। देखिए, जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 + k² / r²। ये विल बी इक्वल टू क्या करोगे, जी साइन थीटा 1 + क्या करोगे, ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी ना। यस, तो आगे लिख लीजिए सर। इसको हटा दो। इसमें होता है, ओके, तो अब अगला क्वेश्चन में 18 ट्राई करेंगे आप। 18, सॉरी, अभी नहीं नहीं, 18 नहीं था, ये तो कुछ और क्वेश्चन था, ये तो 17 का एक पार्ट था जो मैंने आपसे पूछा था। उस नहीं, अच्छा, आप एक चीज देखो, आप जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 + k² / r², राइट। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे k² / r², तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mk² विल बी इक्वल टू mr², mm², तो k² विल बी इक्वल टू क्या करोगे, r²। दिस इज 1, दिस इज कितना है, 1। व्हाट अबाउट दिस, m k² अपॉन mrs, क्या करोगे सर यहाँ पे, mk² विल बी इक्वल टू हाफ mr², राइट, या k² विल बी इक्वल टू r²/2, राइट। यहाँ सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। अब यहाँ इसका मतलब इसकी वैल्यू k², वेरी गुड। वैसे उसका निकालिए अगले वाले का। हम्म, हाँ, ओके। ये वाला है। अब मैं, आपका ज़्यादा किसका आया, मैं एक सेकंड चेक कर देता हूँ। आपका 3/2 थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और 1 सेकंड का पेशेंस है, और 1 सेकंड में आप इंसान बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। 1 सेकंड का पेशेंस लगता है। कभी भी डरना नहीं है किसी भी काम से, मैंने यही लाइफ में सीखा, आप भी यही सीखिए। ये वाला वैल्यू आ गया, तो अब इस वैल्यू को कंपेयर करना है। अब तो अब पुट कर देखेंगे, जी साइन थीटा, एक में आ रहा 1 + 1, एक में आ रहा जी साइन थीटा। डरना थोड़ी ना है, डरना है सृष्टि हमें, डरना है क्या। देन वी जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट अवर ब्रेन, राइट। गॉड हैज गिवन अस द ब्रेन टू थिंक। और जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं कभी भी नहीं डरते हैं, वो जस्ट थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। ओके, कैसे और कर सकते हैं, दिमाग का गेम है ना। नो गेसिंग एट ऑल, कसम खाना है लाइफ में कभी गेस नहीं करना है। कभी लाइफ में क्या नहीं करना है, गेसिंग नहीं करना है। गेसिंग से कभी भी आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, कोई भी दुनिया के इंसान हो। देखिए, जी साइन थीटा हाफ जी साइन थीटा 8, 5, 2/3 जी साइन थीटा हाफ जी साइन थीटा 5/8 जी साइन थीटा 2/3 जी साइन थीटा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई डाउट है। अब आप देखिए सर, इन सब में ये वाला चीज कॉमन है, ये वाला। तो ये वाली वैल्यू पता ना आपको, हाफ। तो अब इसको कंपेयर करना है,
तो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो हम डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 0.5 होता है, इसका मतलब हमें पता है 0.48, 64, 6। 2/3 0.0 ओ माई गॉड, ये भी सिक्स में, ये भी टैली कर गया, तो इसका मतलब एक और सिक्स। यस, ये जीतेगा, 2/3 जीतेगा, राइट। आगे देखिए। यस यस। यस। हो गया। हम्म। 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 ओके। या, वेट फॉर वन। दिखाइए। ओके।
हो गया? ओके 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 ओके, जस्ट अभी चेक कर लेता हूँ। कैसे कि आपने कौन सा एनर्जी क्रिएट किया हम लोगों ने? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया काम किया आपने। फिर V इक्वल टू आर ओमेगा का भरपूर आपने यूज किया इसमें। फिर आपने एक टाइम ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया, आपने टाइम कैसे निकाला? टाइम निकाला कैसे इन्होंने निकाला टाइम? हाउ डू वी कैलकुलेट टाइम? अच्छा नहीं निकाला आपने। फिर आपने फिर आपने V निकल गया, V निकल गया तो फिर क्या कर दिया आपने? हम्म 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 ठीक है। गुड। ऑसम भाई, परफेक्ट, बहुत अच्छा काम किया आपने। आगे चलें? 19 ट्राई करेंगे एक बार? ट्राई कीजिए एक जगह, थोड़ा सा मेरे को एक जगह वो करना है, मैम से बोलना है। मैम मैंने अभी आपको नंबर सेंड किया है मैम। तो हाँ, तो मैम मैं बताता हूँ आप क्या बोलिएगा। आप बोलिएगा कि मेरे बच्चे का, मैं अभी आप 1 मिनट बाद आप कॉल कीजिएगा। आप बस ये बोलिएगा मेरे बच्चे का IQ सही है, 95 से ऊपर मार्क्स चाहिए बस। और मतलब कि उनके पास अच्छे एक्सपीरियंस हैं। हाँ तो, और आप कुछ मत बोलिएगा, बाकी तो आप सर जैसे कीजिएगा, आप देख लीजिए ये रिक्वायरमेंट है। तो बस कल आप डेमो के लिए आ जाइए, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है मैं उनसे पर बोल देता हूँ। जी मैम, चार्जेस तो ज़्यादा लगते हैं लेकिन मैं उनको कम करवा दूंगा मैम। हम्म, हाँ मेरे डेमो ले लीजिए। अच्छा पढ़ाते हैं मैम। हाँ लिक्विड को थोड़ा, लेकिन ये है ना कि थोड़ा सा दबा, क्योंकि मैं तो उतना मेहनत करता हूँ मेरे को पता है। नहीं तो बाकी लोग, आप बोलिए कि नहीं मेरे को यही मेरा रिक्वायरमेंट यही है ना? तो इसीलिए हाँ बस, और कुछ नहीं बोलिएगा, बाकी तो मैं उनसे बोल दूंगा मैं, क्योंकि घर का बच्चा है। ठीक है। ठीक, वेलकम। हाँ जी सृष्टि, हो गया? सृष्टि, करो। हम्म हम्म जल्दी निकालिए जल्दी। हम्म आप हाँ आप 10 यूज कर लीजिए। ठीक है, हेलो। हाँ, ठीक है। हाँ आप 61 सेकंड वेट कर लेना। आप उनको बोलना सर कि मेरे फी वगैरह तो है ना 1300 1500 है, लेकिन जो पांडे जी बोलेंगे ना मैं वो रख लूँगा। और बाकी है, वो उन्होंने अभी मेरे को कॉल करके बोला है, रिजल्ट की बात है। तो मैं कोई बार कल थोड़ा बच्चे को चेक करके फिर बताता हूँ कि इसका अच्छा बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है। ठीक है सर। तो आप, हाँ तो, हाँ तो आप बात कर लीजिए अभी, बात कर लीजिए। हाँ सर वो आप समझ गए ना कि एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा क्लास में हूँ मैं। तो बस जो है ना, आप समझ गए ना, बस वो कर, आप कर दीजिए ना। हाँ आप, लेकिन आप बोल दीजिएगा ना कि इतना है लेता हूँ मैं। तो हाँ, तो मैं कुछ बोलूँगा कि ठीक है उनके रिगार्ड से मैंने कुछ किया है, ये बोल दीजिएगा। ठीक, समझ गया ना? ठीक है सर, कीजिए आप।
चलिए आगे आगे आ जाओ। इतने एक्सपीरियंस टीचर हो गए तब भी इन लोगों को। ओके गुड, आ जाओ सृष्टि, कैसे किया भाई जल्दी बताओ। रियली सॉरी, जल्दी जल्दी करो, मेरे को फोकस करना पड़ेगा ये घंटे अच्छे से आपके ऊपर। हाँ बताओ। सेंड किया भाई ने? ओके तो इस मंथ बहुत पेपर है आपके, है ना सृष्टि? घूम रहे हो आप घर में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इस मंथ बहुत पेपर है। नो नीड्स, ऑल राइट, आई एम जस्ट किडिंग, है ना। इस मंथ पेपर बहुत जा रहे हैं ना। कितने पेपर है भाई को देने हैं इस बार? 2 TR आपने वो लगाया ना, टॉर्क विल बी इक्वल टू टॉ विल बी इक्वल टू आई अल्फा, राइट? सो टॉर्क विल बी इक्वल टू क्या करेंगे सर? आई इंटू अल्फा, ये वाला। तो कैसे करोगे बताओ? ऐसे कर दो, ये है अल्फा, ये 2T, ये वाला mg है। तो हमें पता है mg। अच्छा जी, इसके बाद का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसके बाद क्या किया आपने टॉर्क निकालने के बाद? अच्छा सृष्टि एक अच्छी चीज सिखा दूं आपको। व्हाट विल बी द टॉर्क ड्यू टू द mg अराउंड पॉइंट O? what will be the torque due to mg around the point O? बताइए। देखिए टॉर्क ने का फॉर्मूला बताइए, R क्रॉस F होता है ना। तो अब ये जो फोर्स लग रहा है और इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो इनका डिस्टेंस 0 हो गया ना। अगर आप यहाँ का टॉर्क निकाल रहे हो, सपोज यहाँ पे 3 फोर्स हैं और आप 4 फोर्स है, ऑल फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो क्या हो जाएगा सर बताइए? 0 है, क्या हो जाएगा सर बताओ? अब दिख रहा है सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये 0 आ रहा कुछ समझ में आपको? ये याद रख लेना है, ये क्या कर लेना है, ये याद रख लेना है कि ये जितने भी हैं ये वाले, ये सबके फोर्सेस क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। गुड। तो इसलिए याद रख लेना कि किसी चीज़ का अगर हम निकाल रहे हैं, इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग दैट, इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क, तो क्या हो जाएगा बताओ सर? इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क तो हमें करना पड़ेगा टाउ विल बी इक्वल टू R क्रॉस F, RF साइन थीटा। कोई डाउट है? आगे चलें, आगे। ओके अब नाउ प्लीज कम टू दिस पॉइंट। अब आपने बताना है, बताओगे ना? व्हाट विल द टॉर्क ड्यू टू mg रिगार्डिंग पॉइंट A? वेरी वेरी गुड। व्हाट विल द टॉर्क ड्यू टू 2T? 2TR। हाँ तो F की जगह पे R 2T आ गया ना। गॉट इट? चलिए जितना आप इंट्रैक्शन करेंगे उतना आपको भला होगा इस चैप्टर में। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाओगे इसमें? एक तो इक्वेशन तो ये बन जाएगा आपका कि mg माइनस 2T विल बी इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन।
हाँ, फॉर द रोटेशनल मोशन बताइए। तो नेट टॉर्क किसके इक्वल है? ओके सॉरी, आई सी एम इंटू अल्फा। और आपको पता है 2 TR को भाई को पता है, और भाई ने उसको सॉल्व कर दिया, आगे निकल गया। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया ना? अच्छा, एक सेकंड, फिर से आपको एक चीज़ थोड़ा सा मैं तंग करूंगा आपको मैं। क्या किया क्या हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन में, क्या क्या किया हम लोगों ने? टी टी क्या किया? बताइए, व्हाट वी हैव डन। व्हाट वी हैव डन बताइए। हम्म। 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 हाँ ठीक है। अब इसी बात पे जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से करना, आराम से करना, नर्वस नहीं होना, डिस्कस करना, राइट? हम्म। मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट। नॉट फॉर श्योर। हम्म। टॉर्क जीरो क्यों होगा? हम्म। वेरी वेरी गुड, देखा आपने, कहा आप इसको बोलते हैं डिस्कशन। क्योंकि आपको पता है टॉर्क जो होगा, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन नहीं है ना, इसीलिए कि अगर फ्रिक्शन रहता तो ओनली द टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन विल बी गोइंग टू बी देयर, तो यहाँ पे सब कुछ जीरो ही हो जाता है। देखा आपने जादू, चीटिंग तो नहीं किया ना आपने? 21 करो। हम्म। क्या है बताइए?
क्या क्या एज्यूम किया आपने इसमें? हम्म क्या किया आपने? फोर्स लगाया, राइट? जैसे कि ना mg साइन थीटा माइनस म्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट? सॉल्व करके निकाल दिया। वी गुड, आगे चलें। आगे चलते हैं। जैसे क्या बोल रहा था मैं आपको, क्वेश्चन नंबर आ गया 21 हो गया। सृष्टि 22 करें? कर। तो टॉक विल बी इक्वल टू क्या लिखा है सृष्टि? ओहो, सॉरी। ड्रॉ द डायग्राम। हम्म 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 कुछ भेजा आपने? देखो। हम्म 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 यस, आई एम लिसनिंग। ये आपका आंसर ही सुन रहा हूँ मैं, बहुत लंबा नहीं है।
आपने कैसे किया इसको? हम्म, ठीक है, करो सेंड करो। ओनली? क्यों सृष्टि? वो पेपर है ना आपके, कोई बात नहीं। हम अगले वीक में जब पेपर खत्म हो जाएगा ना, तो जो क्लासेस इस मंथ के एडजस्ट कर लेंगे, राइट? हाँ, एक सेकंड, इसमें क्या गलत किया आपने? इसमें सही है, राइट, गुड। इसको करें 23rd को? मैं करूँ, आप करोगे ऐसा? या 23 24? ओके, ओके। इसमें दिया हुआ है कि पहली बात तो क्या है कि हम क्या करेंगे, मेक अ डायग्राम ऐसे, ऐसे, ये है, ज्वाइन कर देंगे, थीटा है, तो क्या है, और यहाँ पे वैल्यू जो है मेक दिस टाइप ऑफ थिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ऐसे जा रहा है, आर इंटू ओमेगा हो रहा है, ये थीटा हो रहा है। सो हमें क्या करना है सृष्टि, हमें पता है कि VCM किसके इक्वल होता है सृष्टि, बोलिए, आर ओमेगा। और आपको पता है, क्या पता है कि अगर आप पाइथागोरस लगाओगे बाय यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस, तो कैसे आएगा बताओ? तो ऐसा करोगे ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस, कैसे होगा बताओ? पाइथागोरस हमें करने वाले हैं कि ये जो वैल्यू जो है हमारे पास, एक तो यहाँ पे इस सेंटर ऑफ मास का VCM हो जाएगा, और हमें ए वाला O है, ए वाला पॉइंट P है,
और आपको पता है अगर हमें इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पता क्या करना पड़ेगा? वी जस्ट हैव टू ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स। क्या करोगे? आर ओमेगा कॉस थीटा एंड दिस वाले को क्या करोगे? आर ओमेगा साइन थीटा। तो ये दोनों क्या है? अलोंग सेम एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव है। तो नेट क्या करोगे? वी सी एम माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या करोगे? ऊपर में क्या करोगे? आर ओमेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, राइट? दिस इज द वे हाउ वी हैव टू सॉल्व। प्लीज, अब आया समझ में आपको? प्लीज सॉल्व। Yes, and this is the way how someone what we call calculate, right? आगे चलें। ओके, सेम वे सेम अप्रोच। हाँ जी, हाँ जी, मैं थोड़ा सा तरीका बता दूंगा ना, वे, राइट? डेट विल बी मोर इजियर। क्या है, मैं भी क्वेश्चन पढ़ लूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई साहब? 24, राइट? तो पॉइंट ए इज एट द टॉप, तो पॉइंट बी तो हमें पता है, ये ऐसे सर्कल का गोला है। वी टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट आर ओमेगा वी सी एम, तो वी सी एम प्लस आर ओमेगा, this will be equal to VCM plus VCM 2 VCM। ओके, ये तो आपका टॉप वाले का हो गया। अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे, इसका VCM इधर है, इसका आर ओमेगा इधर है, रिजल्टेंट निकालिए। दिस इज द रिजल्टेंट, अंडर रूट आर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी सी एस स्क्वायर। चलिए डी का निकालिए। वी सी एम आर ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर, राइट? गॉट इट? या सृष्टि? और हमें क्या निकालना है? टोटल काइनेटिक एनर्जी। पहले आप तो वेलोसिटी निकालो, फिर मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। यस यस यस, प्लीज। यस सृष्टि, डन। हेलो, हाँ प्लीज जाइए, प्लीज कम।
हो गया, गुड। जो हम करने वाले क्या है सुनेंगे आराम से। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी will be half, सबको ऐड कर दो, हाफ वी बी डी, ये डी स्क्वायर 2m वी बी होल स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर द व्हाट वी कॉल रिंग। ऐड कीजिए सबको सर। रिंग का कितना होता है, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर द डिफरेंट पार्टिकल्स एंड दिस इज फॉर द होल रिंग, दिस इज द टोटल समेशन। आ गया सृष्टि को? यस, ओके। नेक्स्ट ट्राई करोगे? या मेरे में लोडिंग ले रहा है, क्या पता क्या। हम्म, we are doing what we called angular momentum, we have done. Yes, calculate, we are doing question 25 now. Okay, impulse will be equal to f into dt, और f को हम लिख सकते हैं क्या, tau dt। मैं इसको करूं, मतलब थोड़ा हेल्प करूं इसमें। यस, सृष्टि कोई बात नहीं, करूं मैं? फिर से म्यूट चले गए क्या ये? अरे सो क्या चला गया ये, देख रहे कहाँ गए? अरे म्यूट, म्यूट हटाइए। कैन आई डू दिस क्वेश्चन सृष्टि? चलिए, अब हम ये करने वाले हैं 25 में। क्वेश्चन आपको क्या समझ में आया ये बताइए आप। एक यहाँ पे फोर्स लगा जो सेंटर से h हाइट पे है, F। तो I विल बी इक्वल टू कितना था बताइए, F dt। और आपको पता है इम्पल्स कैसे देते हैं, इम्पल्स, तो इम्पल्स विल बी इक्वल टू, ये भी इम्पल्स ही था ये, तो
एक और फॉर्मूला इम्पल्स का ऐसे बाय द वे, टॉ डी टी के फॉर्म में, और जो आई इंटू एच के फॉर्म में आ जाएगा, ये डिस्टेंस एच है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना पड़ेगा, ये भी फॉर्मूला आपको याद ही होगा। ये लीनियर के फॉर्म में था, ये एंगुलर के फॉर्म में आ गया। और अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसको याद करने के लिए, थोड़ा सा पेशेंस, इसको थोड़ा सा भी स्टार पे रखिए आप। नाउ व्हाट वी हैव टू गिवन, ये जो लीनियर मोमेंटम, लीनियर इम्पल्स का मतलब जो भी आपको पता है ना, इम्पल्स जो होगा, तो फोर्स विल बी इक्वल टू क्या होता है, डी पी बाई डी टी। तो एफ डी टी विल बी इक्वल टू डी पी, राइट। तो इम्पल्स विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा पी। सो जो लीनियर, सुनिए सर, सो लीनियर इम्पल्स किसके इक्वल होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। So linear momentum, linear impulse, by this formula change in momentum, तो फाइनल इट्स VCM, इनिशियल इट हैज 0। अब एनुलर मोमेंटम इक्वेट करते हैं। नाउ जस्ट सॉल्व, राइट द एनुलर व्हाट वी कॉल्ड एनुलर इम्पल्स, एनुलर इम्पल्स about CM equal to change in what, angular momentum। तो J will be equal to क्या करोगे, I into H, I will be equal to how much, 2/5 mr square, 2/5 mr square omega minus 0। we just have to divide equation 1 and 2। हो गया, गॉट इट। यस, ओके। 27 आपने ट्राई करना है भाई, नहीं नहीं नहीं, 26 ट्राई करना है। फर्स्ट टू राइट द इक्वेशन ना, कि लीनियर इम्पल्स विल बी, लीनियर इम्पल्स क्या होता है, एनुलर इम्पल्स क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, टॉर्क कैसे निकालते हैं। प्लीज राइट समथिंग।
हम्म हम्म कह रहे आगे क्या अंडरस्टूड था आपने बोला? यस। नो, आपने बोला कि थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई। तो क्या उसमें क्या बोल रहे थे आप उसके पहले? वो तो मैं सुन लिया। क्या अप्रोच क्या था इसका? हम्म अच्छा क्या अप्रोच है? हम्म हम्म ठीक है। What we have done, suppose we just have to write the two equation. वन इक्वेशन किसका लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे इम्पल्स मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आई विल बी इक्वल टू व्हाट? MVCM। ये जीरो है और ये जो वैल्यू है आई विल बी इक्वल टू L/2 ML²/12, क्योंकि वो रॉड का होता है सेंटर से और उसका डिस्टेंस जो है ओमेगा उसका स्पीड है और फाइनल इसका जीरो था। ये तो मैंने इसके लिए लिखा। दिस इज द लीनियर वाला, ये सीखना है। सृष्टि सीख लो तो सीख गए आप। दिस इज फॉर द लीनियर एंड दिस इज फॉर व्हाट? एनुलर इम्पल्स। दिस इज ऑल्सो इम्पल्स। दिस इज द वे हाउ वी हैव राइट। ये भी हमने लिखा, बाकी इसको सॉल्व करना, बाकी सॉल्व कर लेना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलिए ये जो 37 करें, 27 सॉरी। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। होता क्या है कि इफ नो फोर्स, इफ नो acting on the point the momentum will be what? Momentum will be what? Conserve. Momentum will be conserved. Done. चले आगे। कैसे बनाना है इसे? एक जो बंदा बैठा है उसका डिस्क ले, हेलो, एक तो जो डिस्क का लेंगे और एक जो बंदा जो बैठा हुआ है उसका लेंगे। तो इतना सिंपल। हाँ, पहले इसका एक आपको नमूना दिखाता हूँ फिर आप सुनना। राइट, देखिए ये आपका सिस्टम है, ये आपकी एक्सिस है। तो बोला जाता है ओमेगा है इफ नो फोर्स acting on the particles
their momentum will be conserved, right? So this is a formula. Hello, always MVR will be equal to M1 V1 R1 M2 V2 R2. If they have the same, we can also write I1 omega 1 I2 omega 2, right? So what is I1? So this I1 is the initial moment of inertia when the systems are at the center. Second, I2 is what? I2 is moment of inertia when the system shifted to the other point. Now equate that. Now equate there this momentum I1 omega 1 will be equal to I2 omega 2. कुछ आया अपने समझ में? जल्दी से कीजिए. गुड, वेरी गुड. सृष्टि, सृष्टि को कुछ आया क्या समझ में? आपने यस यस प्लीज डू. Yes, yes, please, please. Yes, yeah, 28. Done, Srishti? Okay. Hmm. Hmm.
हम्म. Can I help you? सृष्टि, प्लीज लेट मी नो. हाँ, तो मैं तो पूछ रहा हूँ एज ए फॉर. ठीक है, आगे चले. 29 जो करेगा उसके लिए पिज्जा ऑर्डर हो जाएगा. कितनी सारी पिज्जे बाकी हैं, करोड़ों हो गए लग रहा है ऐसा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एनुलर मोमेंटम क्लास? एम बी आर आई ओमेगा. तो आप इस स्टेटमेंट से आप दोस्ती कीजिए कि व्हेन वी डू नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन द बॉडी, देयर एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व. यस, प्लीज राइट. इस लाइन से दोस्ती टैग लाइन है. क्या टैग लाइन है फिजिक्स का? इफ नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन देयर एंगुलर मोमेंटम विल बी रिमेन कंजर्व. राइट. प्लीज डू. यस, प्लीज डू डैट. आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट. अब इन सारे क्वेश्चन के ऊपर रिपीट भी करना होता है, राइट? जल्दी करेंगे जीनियस पीपल्स. हाँ, वो तो पता है मुझे. हम्म. ओके, तो साथ में करें. So what they have given in this, till now what do you learn from this chapter? This topic, I mean this question, what they want. Hmm. 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 तो एम वी आर कॉन्स्टेंट होगा, राइट? तो आप कर दो ना. हम्म. अच्छा, ये इसका टाइम पीरियड का पता है फॉर्मूला? टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है पता है? अगर जब भी अगर किसी रस्सी को आप घुमा रहे हो, अगर गोल गोल रोटेट कर रहा है, तो टेंशन विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. डू यू नो ना, और यू डोंट नो? इफ यू हैव अ थ्रेड. हम्म. सो अब इन द सेकंड केस, T2 विल बी इक्वल टू, आ रहा है कुछ समझ में सृष्टि को? सब बाउंस बैक तो नहीं हो रहा ना? ओहो.
हाँ वो मैं समझ गया ना क्यों टायर्ड हो गए आप, क्योंकि हम्म, तो 538 हो गया, और फिजिक्स में 2 आवर, तो तो 11 आवर ये हो गए। भाई को खाना भी तो खाना है, तो 11:30 हो जाएंगे, सोना भी तो है 4-5 घंटे। तो बड़ा हैप्टिक है, इतना बच्चा मेहनत कर रहे हैं यार। लेकिन फोकस के साथ मेहनत करना, प्रॉब्लम जैसे मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ जैसे प्रॉब्लम्स करना है, यही दिस इज द रियल स्टोरी। हाँ बाकी सब तो टाइम पास होता होगा, लेकिन मैं तो टाइम पास नहीं करने देता, जो आता है यही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। करो आप खुद से करो एक बार, मैंने आपको हिंट दे दिया, प्लीज डू डैट। ओके, अब हम 50 कर लें क्या? तो 30 क्वेश्चन नहीं, 30 छोड़ दो, थोड़ा दिमाग लगेगा 30th में, 31st भी छोड़ दो। अब हम आपको सिंपल सिंपल दो चार क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके बोर्ड में आते हैं। बोर्ड मीन्स दिस वन। कम टू द एलेंस मटेरियल, हाँ एलन वाले मटेरियल पे आइए, मिडिल वन। डू क्वेश्चन नंबर कौन सा दे दूं मैं? कम टू द पेज नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरा फेवरेट। जल्दी करेंगे। वी हैव कम टू द पेज नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट टॉप एग्जाम, टॉप मोस्ट एग्जाम। हम्म, ओके, वेयर। इसीलिए दिया मैंने। चले, yeah, I'm just giving the, just wait for 1 minute please।
कम टू द पेज नंबर 23rd. एक कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं टॉपलिंग, है ना. या तो इफ दिस इज द व्हाट वी कॉल्ड force, if you keep the body like this, so what we have to do, सृष्टि सुनना आपने, करते क्या है क्वेश्चंस में, ड्रॉ द एबिलिटी लाइक दिस क्लास. mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा. यहाँ पे इधर आपने फोर्स लगाया है, ये डिस्टेंस b दे रखा है, ये डिस्टेंस a/2 दे रखा है. दिस इज द नॉर्मल. सो वी हैव 2 to 3 फोर्सेस. ये फोर्स दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, a/2 दिया हुआ है. और हमें पता है कि क्या पता है कि अगर ये फोर्स है, मैं निकाल रहा हूँ टॉपलिंग इसके अलॉन्ग एट दिस पॉइंट O, तो फोर्स ये है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके कारण तो जीरो हो जाएगा, और ये जितना इसको घुमाएगा उतना mg इधर लगाएगा, ए इधर आना चाहेगा. कुछ आप देख पा रहे हो क्या जादू? जादू में क्या देखा आपने? अच्छा ठीक है. जादू ये है कि आप अगर दिस इज द ब्लॉक राइट, तो इफ यू अप्लाई अ फोर्स एट दिस पोजीशन, दिस इज द mg, दिस डिस्टेंस इज a/2, तो दिस विल बी ट्राई टू मेक दिस बॉडी इन अ व्हाट, दिस वे एंटी क्लॉकवाइज, ए वाले बॉडी को क्लॉकवाइज में लगाएगा. तो क्या करोगे, देखो mg a/2 विल बी इक्वल टू f into b. So torque due to 2 points will be going to be cancel each other. We have written the what we call final expression like this. कभी भी टॉपलिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, और है ना, वी हैव टू सेलेक्ट अ पॉइंट, देन वी हैव टू इक्वेट दिस टू इक्वेशन. क्या बोला मैंने, आप बताइए. कभी भी क्वेश्चंस आते हैं, वेन एवर देयर विल बी द क्वेश्चंस ऑफ द टॉपलिंग, आपको क्या कर लेना है, टॉर्क बैलेंस करना है. Due to the all the forces, we have to select a particular point along which we have to equate our torque, right? Got it? No, आपको नहीं समझ में आया. इसका करो आप. ये 5 kg है, this is 2 meter, force is 3 meter. What will be the force for the toppling? Please calculate, use the formula, write the formula. Which formula we are going to use? कौन सा formula लगाएंगे? Which formula we are going to use? Which formula we are going to use? बताइए. तो just write the equator formula ना, F into R will be equal to mg into 2. अरे भाई अभी तो बताया था मैंने कि this will be equal to 5g. We are want to calculating the torque along this point. तो force is mg, distance is 2. तो due to this force, torque will be 5g into 2.
ड्यू टू दिस फोर्स इंटू 3 बोथ विल बी इक्वल इन अपोजिट. तो F will be equal to 5g by 2 into 2 upon 3. Got it or not? ड्यू टू नॉर्मल के कारण 0 हो जाएगा ये. आगे एक और क्वेश्चन तो करोगे. हाँ जी, सिंपल से दे रहा हूँ, डू नॉट वरी. मेरे को पता है आप बहुत हार्ड वर्किंग है, वेरी टैलेंटेड, वेरी. लेकिन एक चीज़ करना, मजदूरी नहीं करना. डू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मजदूरी? समझदार को इशारा काफ़ी है, राइट? ओके. फोर्स आई जस्ट गेट टायर्ड मैन. चलिए, मैं 18 घंटे पढ़ा रहा हूँ आप. चलिए जल्दी कीजिए. यस यार. और ना, क्लास है आपकी अभी. तो आ जाओ. और क्या अच्छा. हो गया? क्या बोल रहे सृष्टि? फोर्स इंटू 5 ना, 10 इंटू, या 20 न्यूटन मैन. जी नहीं, जी तो नहीं बोलेंगे. नो 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 नो, यू आर राइट. क्योंकि ये तो ये 10 क्या है? कहाँ गया है सेल्फ कॉन्फिडेंस? आप सही थे तभी गलत कर रहे थे आप. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. आई हैव इंटेंस फेथ ऑन यू. चलिए जी, और कुछ करा दो भाई साहब. चलो, थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस. हाँ, कुछ बोल रहे थे. क्या बोल रहे थे आप?